Hello students, good morning, welcome to your English class. We are reading English tenses and in that we have done with simple present tense, present continuous tense, present perfect tense. Today we will study about present perfect continuous tense. Okay. What is present perfect continuous tense? The present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. The present perfect continuous is formed using the construction has/have been plus the present participle, which means V ing. Okay. So present perfect continuous tense क्या है? वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम तक वो कंटिन्यू है. ओके. इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस बीन विच मीन्स हैज़ बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज़ दैट. देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं इसमें. ओके. लेट्स गो फर्दर. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. As we know the meaning, perfect means complete, continuous means progressive or which is going on and on. Hence, the perfect continuous tense is used when the action is partially complete, which means started at certain time in past, and partially progressive, which means it is still going on. ओके. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, मीन्स जो हो चुका है. कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव जो जारी है. तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को शो करता है जो आधा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पास्ट में वो स्टार्ट हुआ था और हाफ वो पार्शली वो क्या है प्रोग्रेसिव है और अभी भी वो जारी है. ओके. प्रेजेंट टाइम तक. एज लाइक Ranu has been playing since morning. As I told you, the helping verbs of present perfect continuous tense is has, have, been and V ing form. Okay, verb की ing form का use करते हैं इसमें. Okay, to show the time. And we use since and for. For example, Ranu has been playing since morning. Ranu here is third person singular and that's why we have used has been with the subject, because has been is used with singular subject third person. Okay. So Ranu has been playing since morning. Ranu सुबह से खेल रही है. रानू सुबह से खेल रही है विच मीन्स कि जो एक्शन स्टार्ट हुआ था इट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग बट इट इज़ कंटिन्यू टू दिस प्रेजेंट टाइम. ओके. तो जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो जिसने जो खेलना स्टार्ट किया था वो मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और वो अभी तक खेल रही है विच मीन्स द एक्शन इज़ गोइंग ऑन. The girl has been plucking flowers for 20 minutes. The girl is also a third person singular subject and that's why we used has been here. The girl has been plucking flowers for 20 minutes. और लड़की 20 मिनट से फ्लावर्स को फूल को तोड़ रही है. We have been working here since 2001. We is plural subject here. That's why we have used have been. Okay. Have been is used with plural subject as like I, we and they. Okay. So we have been working here since 2001. हम यहाँ पर 2001 से काम कर रहे हैं विच मीन्स कि 2001 से ये काम स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चीज़ जारी है. हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है. दैट इज शोज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. नाउ लेट्स सी सम रूल्स फॉर यूजिंग सिंस एंड फॉर. एज यू हैव बीन ऑब्जर्व्ड दैट we have been using the words since and for to show the time duration of the action.
Okay, so let's see when we have to use since and when do we have to use for. Since is used with point of time, that is the time when the action started. since का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम दिखाना होता है, ओके, कि कब एक्शन स्टार्ट हुआ। उस टाइम को शो करने के लिए वो जो टाइम एग्जैक्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसको शो करने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंस 9 AM 9 बजे से, सिंस 2001 2001 से, सिंस मंडे मंडे से, सिंस फरवरी फरवरी से, एक्सेट्रा। फॉर इज़ यूज्ड विथ पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर का यूज़ किसी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच ए पर्टिकुलर एक्शन लास्टेड। एग्जाम्पल, फॉर 2 hours, फॉर 5 years, फॉर 30 minutes, फॉर 10 days एंड एक्सेट्रा। यानी कि लंबे समय को दिखाने के लिए जो एग्जैक्ट नहीं है बल्कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसको शो करने के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर 5 hours 5 घंटे से, फॉर 30 minutes यानी कि 30 मिनट से, या फॉर 10 days या 10 दिनों से। ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, तो इसलिए ऐसे टाइम को शो करने के लिए सेंटेंसेस में फॉर वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू शो द टाइम ड्यूरेशन एज वेल as when the action started, at which time, at point of time, or of the what is the duration of time. Both we have to show through the sentences, okay, and we show through by using since and for. Let's see the negative structure for negative sentences. In negative structure we have subject plus have slash have plus not plus been plus we first plus ing plus object. Always remember, negation show करने के लिए when we have to add not, we always have to add not before the been, not after the been. Some people commit such kind of mistakes कि वो been जैसे she has been not लगा देते हैं, तो ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, देन द हेल्पिंग वर्ब्स कम्स, दैट इज़ हैज़, हैव, देन द नेगेटिव, दैट मीन्स नॉट कम्स, देन बीन कम्स। ओके, यू हैव टू ऐड नॉट बिटवीन द हैज़ एंड हैव एंड बीन। ओके, तो बीन और हैज़ हैव के बीच में आपको नॉट ऐड करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ing फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, योर ward हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर लास्ट 1 week. Here your ward is the subject, and according to the subject we used has not because it is not only about you, it is your ward. Your ward is a singular third person subject. Okay, that's why we have used has. Your ward has, then we add not. Your ward has not, then we add been. Your ward has not been, then we add we first and ing, which means coming. Your ward has not been coming, then follows the object to school for last 1 week. For last 1 week, which means पिछले एक हफ्ते से। यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बल्कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एंड दैट्स वाई वी यूज्ड फॉर इट। ओके, सो पिछले एक हफ्ते से आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, विच मीन्स कि जो एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में हुआ, पिछले हफ्ते स्टार्ट हुआ, और क्योंकि अभी तक नहीं आ रहा है वो एक्शन कंटिन्यू है, जारी है। ओके, टू शो दैट टाइप ऑफ sentences we use present perfect continuous tense. Okay, let's see the interrogative structure now. In interrogative, the helping verb comes first, has slash has plus subject plus not plus been plus we first plus ing plus o. Okay, so
सबसे पहले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब आएंगे एंड इट वुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हैज़ और अगर प्लूरल है तो हैव। उसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ऐड करेंगे, अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो बीन आ जाएगा, ठीक है। देन कम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वी ऐड ing with verb first and then follows the object. For example, has your ward been absenting himself from the class for last 1 week? यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर आस्किंग क्वेश्चंस। सो हैज़ योर ward been absenting himself from the class for last 1 week? क्या आपका जो वार्ड है, जो बच्चा है, वो पिछले 1 हफ्ते से क्लास में एब्सेंट हो रहा है। विच मीन्स द एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम। ओके, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से है तो अगेन इसके में हम फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम शो करना है कि वो 3rd मई से नहीं आ रहा है, एज लाइक फॉर एग्जाम्पल हैज़ योर वार्ड बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास सिंस 3rd में मैंने ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया तो वहाँ पे सिंस का यूज़ हो जाएगा, ओके, रादर देन फॉर। तो इस तरह से यू मस्ट डू प्रैक्टिस ऑन मेकिंग सेंटेंसेज on present perfect continuous tense. I hope you have understood this. I'll see you in next class. Thank you.